نہیں، میں ہر شام کو اپنا کام کر کے گھر واپس آ جاؤں گا، جس طرح پرندے اپنے گھونسلوں میں برسیرا کرنے کے لیے واپس پلٹتے ہیں۔ وہ متاثر نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی، اگر تم وعدہ کرتے ہو تو ٹھیک ہے، یہ مرحلہ بھی طے ہو گیا۔ میں کسی کے لیے بھی اپنے مقصد کو قربان نہیں کر سکتا تھا۔ جو ہدایات دی گئی تھیں ان میں پہلا مرحلہ یہی تھا کہ کم از کم کسی کے شانوں پر نہ پڑا رہوں۔ اب تک تو ایسا ہی ہوتا رہا تھا، کبھی رمضان کے ہوٹل پر تو کبھی کسی کے گھر۔ یہاں سے نکلا تو وہاں جا بیٹھا، وہاں سے نکلا تو دوسری جگہ جا بیٹھا۔ کئی بار ہاتھ پاؤں چلانے کی کوشش کی تھی لیکن راستے بند ہو گئے تھے۔ ایک دلچسپ بات جو اب تک میں نے محسوس کی تھی وہ یہ تھی کہ اس وقت کے بعد سے جب مجھے سورج کے ساتھ سفر کر کے ایک منزل پر پہنچنا پڑا اور وہاں میرے لیے عدالت لگی تھی، میرے بیروں کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ میں کہیں بھی ہوتا ان کی چاپ سنتا رہتا، ان کی حرکتیں میرے ذہن تک پہنچتی رہتی، لیکن اس عدالت سے واپسی کے بعد سے یہ بیر میرے گرد چکر نہیں لگاتے تھے۔ دل میں خیال تو آیا کئی بار، لیکن انہیں آواز دینے کی جرأت نہیں ہوئی تھی۔ جو غلطیاں کر چکا تھا انہی سے بمشکل تمام جان بچی تھی۔ اب کوئی اور حماقت کر کے اپنے لیے مزید مشکلات نہیں خریدنا چاہتا تھا۔ صبر کرنا تھا، انتظار کرنا تھا۔ صبر اور انتظار، یہی دو چیزیں مجھے میری منزل تک پہنچا سکتی تھی، اور میں اپنی زندگی کے اس سفر میں لاتعداد مصیبتیں اٹھانے کے باوجود منزل کی طلب سے اپنے آپ کو دور نہیں کر پایا تھا۔ بہرحال کسی بھی شخصیت کو، کسی بھی واقعے کو اپنے اوپر مسلط کرنے سے راستے رک جاتے ہیں۔ بے شک رما رانی مجھے یہاں تک لے آئی تھی، لیکن اگر وہ میرے راستے کی رکاوٹ بنتی اور مجھے یہاں سے باہر نکلنے کا موقع نہ ملتا تو بحالت مجبوری ایک بار پھر دھوکہ دے کر مجھے یہاں سے نکلنا پڑتا۔ لیکن اب کشنا بھی تیار تھی اور رما رانی نے بھی مجھے نوکری کی تلاش کی اجازت دے دی تھی۔ غالباً اس کی وجہ یہ تھی ان کے حالات بھی بہتر نہیں تھے۔ چنانچہ میدان عبور کر کے اس آبادی میں اور اس آبادی سے بنارس کی سڑکوں پر پہنچ گیا۔ بنارس معمولی جگہ نہیں تھی، ہندوستان میں سب سے بڑی حیثیت کا حامل ہے یہ شہر، اور شاید تقدیر میری بھی رہنمائی کر رہی تھی۔ شام کے تقریباً 4 بجے تھے۔ میں نے ایک شخص کو آگے بڑھے ہوئے دیکھا، قدم لڑکھڑا رہے تھے، ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار کر سہارا حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آس پاس کوئی اور موجود نہیں تھا، سنسان سی جگہ تھی، جگہ جگہ درخت کھڑے ہوئے تھے۔ ایک لمحے میں نے محسوس کیا کہ اگر یہ شخص کوئی سہارا پانے میں کامیاب نہ ہوا تو یقینی طور پر زمین پر آ پڑے گا۔ لوگ اس کی جانب متوجہ نہیں تھے۔ میں تیزی سے آگے بڑھا اور میں نے اس شخص کو سنبھال لیا۔ پورا جسم پسینہ پسینہ ہو رہا تھا، مسلمان لگتا تھا لباس سے، چہرے مورے سے، ہاتھوں میں بیت کی چھڑی تھی اور اس کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے مجھے ڈوبتی نگاہوں سے دیکھا اور بولا، میں دل کا مریض ہوں، میری شیروانی کی جیب میں گھر کا پتہ رکھا ہوا ہے، اس وقت میری حالت بہت خراب ہے، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ فاصلے پر تانگے آتے جاتے نظر آ رہے تھے، لیکن وہاں تک پہنچنا ناممکن تھا۔ بڑی پریشانی کے عالم میں انہیں سہارا دیتے ہوئے ایک درخت کے نیچے لے آیا، ان کے سینے پر ہلکی ہلکی مالش کی اور پانی کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ تھوڑے فاصلے پر ناریل کا ایک درخت نظر آیا۔ پانی تو اور کہیں موجود نہیں تھا۔ ناریل کے درخت کے قریب پہنچا، درخت کو زور زور سے ہلایا، پتھر اٹھا کر اوپر مارے، تب 2 ناریل ٹوٹ کر نیچے گر پڑے، اور اس کے بعد انہیں توڑ کر اس شخص کے منہ میں پانی ڈالنا میرے لیے مسئلہ ثابت نہ ہوا۔ ناریل کا پانی شاید اکسیر ثابت ہو رہا تھا اس کے لیے۔ ایک دم اس کی کیفیت بحال ہونے لگی۔ اس نے درخت کے تنے سے گردن ٹکا دی اور گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ میرے دل میں انسانیت اور ہمدردی کا سمندر موجزن تھا۔ یہ شخص صورت سے ہی کوئی نیک انسان معلوم ہوتا تھا۔ جب اس کی کیفیت کافی بہتر ہو گئی تو میں نے اس سے کہا، اب براہ کرم مجھے اپنا پتہ دے دیجئے، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے گھر پہنچا دوں۔ اس شخص نے لرزتے ہاتھ سے شیروانی کی جیب میں رکھا ہوا ایک کاغذ نکالا اور بولا، زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا، اس کاغذ پر میرا پتہ دیکھ لو۔ میں نے پتہ دیکھ کر اس کے بعد اس سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑے فاصلے پر جا کر تانگا لے آؤں۔ اس شخص نے ممنونیت کے انداز میں گردن ہلا دی۔ میں نے کاغذ پر ایک بار پھر اس کا نام اور پتہ دیکھا۔ نام تھا مہتاب علی اور محلہ شیر خان کے مکان نمبر 127 میں رہتا تھا۔ کچھ فاصلے سے گزرتے ہوئے تانگے والے کو اشارہ کیا اور اس کے بعد تانگا لے کر اس کے پاس آ گیا۔ مہتاب علی کو میں نے تانگے کی پچھلی نشست پر سوار کرایا اور اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ مہتاب علی نے آہستہ سے کہا، بہت تکلیف ہو رہی ہے تمہیں، لیکن انکار نہیں کروں گا، انسان ہی انسان کی مدد کا طالب ہوتا ہے اور انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ مجھے میرے گھر پہنچا دو، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔
आप बिल्कुल इत्मीनान से बैठे रहें, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही। थोड़ी देर के बाद तांगा मतलूबा जगह पहुंच गया। मैंने सहारा देकर मेहताब अली को नीचे उतारा, तांगे वाले को जेब से पैसे अदा किए और उसके बाद उस शख्स को सहारा देते हुए घर के दरवाजे तक पहुंच गया। उसने दरवाजे की कुंडी बजाने का इशारा किया और चंद लम्हात के बाद एक नौजवान लड़की ने दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर अजीब से अंदाज में पीछे हट गई और मैं उसे सहारा देकर अंदर ले आया। फौरन ही एक मुअम्मर खातून और एक 8-9 साला बच्ची मेरे पास पहुंच गई। क्या हुआ, क्या हो गया, खुदा खैर करे। अरे क्या तबीयत ख़राब हो गई थी आपकी? अंदर चलो, अंदर चलो, मेहताब अली ने कहा और थोड़ी देर के बाद उसे एक बिस्तर पर लिटा दिया गया। मेरी हालत अब बेहतर है, कमज़ोरी बेपनाह हो गई है। तुम बैठो मियाँ, बैठ जाओ। यूँ समझो कि आज तुम मसीहा बनकर मेरे पास पहुँचे, वरना इस कमबख्त मनहूस इलाके में तो ना कोई तांगा मिलता है ना कोई सहारा। मगर से क्या फ़ायदा? बस बीबी, अगर मगर से क्या फ़ायदा? दौरा पड़ गया था मुझे एक बार फिर, लेकिन ये मसीहा कुछ फासले पर ही मौजूद था। मुअम्मर खातून ने मेरा शुक्रिया अदा किया। नौजवान लड़की भी निगाहों के सामने थी, छोटी सी बच्ची भी, सबके सब सहमी हुई निगाहों से उस शख्स को देख रहे थे। मैंने इजाज़त मांगी तो उसने कहा, मियाँ अगर कोई बहुत ज़्यादा मसरूफियत ना हो तो थोड़ी देर बैठ जाओ। यूँ भी मरीज़ की तीमारदारी इंसानी फरीज़ा है। और फिर तुम तो उस वक्त आप बार बार मुझे ये अल्फाज कहकर शर्मिंदा कर रहे हैं, तो कुछ देर रुक जाओ, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, दिल चाह रहा है। कोई हर्ज नहीं है, मैंने जवाब दिया। मुअम्मर शख्स ने उस औरत से कहा, जाओ भाई, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी दवा ले आओ और मुझे दवा पिला दो, और ज़रा मेहमान के लिए चाय वगैरह को बंदोबस्त करो। मियाँ नाम क्या है तुम्हारा? मसूद अहमद मेरा नाम है। अल्लाह ताला ज़िंदगी अता फरमाए, सेहत दे, तरक्की दे, बुलंदी दे। बड़ी मदद की तुमने हमारी मसूद बेटे। कहाँ रहते हो? यहीं एक जगह है, नाम वगैरह नहीं जानता उसका, चूँकि बनारस आए हुए बहुत ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा और इस वक्त वाकफियत हासिल नहीं है। ओहो, अच्छा, कहीं और से आए हो? जी, अल्लाह ताला खुश रखे। यहाँ आने का कोई मकसद तो होगा बेटे? जी हाँ, बस रिज़्क़ की तलाश में निकला हूँ। कोई नौकरी मिली? मेहताब अली ने पूछा। नहीं, लेकिन मिल जाएगी इंशाल्लाह, कोशिश कर रहा हूँ। मेहताब अली खामोश हो गए, कुछ देर आंखें बंद किए सोचते रहे, फिर बोले, किसके साथ रहते? ऐसे ही कुछ शनासा हैं। देखो मियाँ, ये ना समझना कि हम तुम्हारे कर्ज चुका रहे हैं। कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी भर चुकाए जाएं तो अदा नहीं होते, लेकिन मसला वही है कि इंसान ही इंसान के काम आता है। अगर कुछ और वक्त दे सको तो हम तुमसे कुछ और बातें करेंगे। लो, चाय आ गई, ज़रा चाय पियो। चाय का सामान हमारे सामने रख दिया गया। बेगम साहिबा, जो मेहताब अली की बीवी थी, मोहब्बत भरे अंदाज में चाय बनाने लगी। फिर उन्होंने एक प्याली बड़े एहतमाम से मुझे पेश की और मैंने शुक्रिया अदा करके कबूल कर ली। नौजवान लड़की चली गई थी, लेकिन छोटी उम्र की लड़की वहीं बैठी हुई अजीब सी नज़रों से मुझे देख रही थी। इसका नाम रुखसाना है, मेहताब अली ने अपनी बेटी की तरफ मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हुए कहा। और उनका नाम अब्बू? और इनका नाम अब्बू? सुना नहीं तुमने? मसूद अहमद। हम इन्हें क्या कहें? तुम्हारा कुछ कहना ज़रूरी है क्या? तो ना कहें क्या? लड़की बोली। नहीं भाई, भला तुम्हें कहाँ रोकेंगे। मसूद मियाँ, बस अल्लाह ने मुझे 2 बेटियाँ अता की हैं। बेटे से महरूम हूँ और यही वजह है कि सड़कों, मैदानों और वीरानों में तन्हा फिरता रहता हूँ। बस ऐसे ही अजनबी सहारे मुझे संभाले हुए हैं, या फिर अल्लाह का सहारा है। खैर, ये कोई गमनाक गुफ्तगू नहीं है, तारुफ करा रहा था अपना। दिल की तकलीफ़ हो गई है काफ़ी अरसे से, कभी कभी ऐसी हालत हो जाती है। 2-3 बार हो चुकी है। डॉक्टरों का कहना है कि यह अजीबोगरीब कैफियत है। इसे बाकायदा दिल का दौरा भी नहीं कहा जा सकता, चूँकि 3 दौरों या 2 दौरों में तो इंसान कभी का आसमान पर पहुँच चुका होता है। लेकिन मेरा ख्याल है ये कैफियत मेरी कई बार हो चुकी है। इलाज कर रहा हूँ, कभी कभी तो बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ और कभी कभी यूँ लगता है जैसे मर्ज फिर से वहीं पर आ गया हो। मैं खामोशी से मेहताब अली की सूरत देखता रहा और चाय पीता रहा। उन्होंने खुद चाय नहीं पी थी। बेगम साहिबा ने मेरी प्याली खाली होने के बाद उसे दोबारा भरने के लिए कहा, लेकिन मैंने माजरत कर ली। हाँ तो बेटे, क्या तुम हमारी थोड़ी सी खिदमत कबूल करोगे? जी, मैं समझा नहीं। कल दिन में आ सकते हो किसी वक्त? जी हाँ, क्यों नहीं। ये पता याद रहेगा? अगर याद ना रहा तो इसे लिखकर अपने पास रख लेता हूँ, तलाश करता हुआ आ जाऊँगा। कोई हुक्म है मेरे लिए? हुक्म नहीं बेटे, इल्तजा ही समझो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं तुम्हारी लाजमत के लिए कोशिश करूँ तो। मैं मुस्कुराने लगा। मेहताब अली फ़ौरन बोले, देखा ना, वही हुआ जिसका खदशा था। तुम सोच रहे हो कि इतने बड़े एहसान का सिला चुकाना चाहता हूँ मैं। ऐसी बात नहीं है, बाखुदा मैं ये भी नहीं सोच रहा। तो फिर क्या हर्ज है मियाँ?
तुम इंसानी मोहब्बत से मजबूर होकर मुझे अपना वक्त बर्बाद करने यहाँ तक लाए। क्या तुम्हारे ख्याल में मेरे दिल में इंसानी मोहब्बत नहीं जाग सकती? जो कुछ कर सकता हूँ, अगर तुम उसे कबूल कर लो तो मुझे भी खुशी होगी। ये मेरी ज़रूरत है मेहताब अली साहब, आप हुक्म देते हैं तो हाजिर हो जाऊँगा। वैसे भी आपकी दोबारा खबरगिरी करना चाहता था। आप फरमाइए किस वक्त हाजिर हो जाऊँ? मियाँ कल 11 बजे। हम इस कैफियत में अपनी मुलाजमत पर तो नहीं जा सकेंगे, लेकिन कुछ हालत बेहतर हो गई तो तुम्हारे साथ ज़रूर चलेंगे। बाकी तफसीलात तुम्हें कल दिन में ही बता दी जाएंगी। मेहताब अली बोले। इसके बाद मैंने उनसे इजाज़त तलब की। रास्ते जहन में रखे हुए थे। कृष्णा के घर के सामने चौपाल लगी हुई थी। मालती, रमा रानी, राधा, लक्ष्मी सभी बाहर बैठे हुए थे। उनके दरमियान कृष्णा भी थी। मुझे देखकर सब खुशी से खिल उठे। रत्ना आ गया, रत्ना आ गया, आवाज़ें उभरी। घर में सांप निकल आए हैं क्या? सब लोग बाहर क्यों बैठे हुए हैं? मैंने पूछा। इस बाउली ने नाक में दम कर रखा है, उसे अभी तक तुम पर भरोसा नहीं है। कहती है कि तुम ना आओगे। इसे मैं समझा लूँगा, मैंने कहा और सबके साथ अंदर आ गया। नए हालात के तहत इन लोगों में जम होने में कोई हर्ज नहीं था। कृष्णा को समझाया, रमा रानी को बताया कि नौकरी की कोशिश कर रहा हूँ, मिल जाएगी। उम्मीद पैदा हो गई है, इससे हालात बेहतर हो जाएंगे। रमा रानी गमज़दा हो गई। क्या कुछ नहीं था, हमें भला रुपए पैसे की कमी थी, मगर और फिर एक तरह से अच्छा हुआ। सदियों की रीत तो टूटी। एक बेसवा कभी शरीफ ज़ादी बनी, वो भी पूरे परिवार के साथ। आदी हो जाएंगे, समय भी बीत ही जाएगा रूखी सूखी खाकर, और अगर ऐसा हो गया तो सभी का जीवन संवर जाएगा। यहाँ हमें कौन जानता है, इसीलिए अलग थलग पड़े हैं। पेट भरने का कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। रमा रानी के ख्यालात बहुत बदल गए थे। फिर जज्बाती हुआ था मैं, लेकिन दिल ही दिल में तौबा इस्तगफार कर ली थी। इस जज्बातियत ने तो इस मंजिल पर ला डाला था। दूसरे दिन ठीक 11 बजे मेहताब अली साहब के घर पहुंच गया। यहाँ भी एक मोहतरमा दरवाजे पर मौजूद थी, और जैसे ही मैं उस दरवाजे के सामने रुका, उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। रुखसाना थी। मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखा और मासूम लहजे में बोली। एक एक मिनट गिन रही थी और ये सोच रही थी कि कहीं हमारे प्यारे भैया जी वादा खिलाफी ना कर डालें। हम ज़रा वादे के पाबंद आदमी हैं। अब्बा जी ने हमेशा यही सिखाया है कि बेटा, जब किसी से कोई वादा करो तो उसे अपना ईमान बना लो। हम तो वादे को ईमान बना लेते हैं भैया जी, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? रुखसाना की मासूम बातों ने होंठों पर मुस्कुराहट बखेर दी थी। मैंने प्यार से कहा, भाई बहुत अच्छी तून है, बल्कि यूं समझ लें कि आप तो बैठे बिठाए हमारी उस्ताद बन गई। ऐसा सबक सिखाया हमें कि ज़िंदगी भर याद रखेंगे और कभी वादा खिलाफी भी नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, आपसे वादा किया जाता है। तो फिर पहला वादा ये कीजिए कि अंदर जाकर किसी को नहीं बताएंगे कि हमने आपसे इस तरह गुफ्तगू की है। हमसे कहा जाता है कि बहुत अदब और एहतराम से पेश आया जाए, किसी बड़े से ज़रूरत से ज़्यादा बातें ना की जाएं। मगर हम क्या करें, यहाँ तो बस 3 बड़े ही बड़े हैं। ना कोई हमारे बराबर का है और ना कोई हमसे छोटा। बड़ों से हंसकर बात की जाए तो गुस्ताखी हो जाती है, और छोटों का कोई इंतज़ाम नहीं। अब बताइए, रुखसाना करे तो क्या करे? आइए भैया जी, अंदर आइए। कान दरवाजे पर लगे होंगे, 11 बज रहे हैं और अब्बा मियाँ आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हमें हुक्म दिया गया था कि दरवाजे पर रुकें। कैसी तबीयत है मेहताब अली साहब की? अल्लाह के फजल से ठीक है। आप आ जाइए ना, कह दिया जाएगा कि हमने आपको बातों में लगा रखा था। रुखसाना की शोखो चंचल बातों ने जी खुश कर दिया था। मेहताब अली की हालत काफ़ी बेहतर हो रही थी। चेहरे पर रौनक आ गई थी। बेगम साहिबा के साथ बैठे हुए थे, तैयार थे। छड़ी कुर्सी के साथ लगा रखी थी, जूते पहने हुए थे। सलाम दुआ हुई। कहने लगे, बस मियाँ, वैसे तो तुम्हारी खातिरदारी हम पर फ़र्ज़ है, लेकिन चलना ज़रूरी है। हो सकता है हाजी साहब कहीं निकल जाएं, उनके जाने से पहले उन तक पहुंचना ज़रूरी है। वैसे उनका मुलाजिम आया था, हमने अपनी बीमारी की इत्तला दे दी है। बहुत ही अच्छे इंसान हैं। चलो, रास्ते में बातें होंगी। अच्छा भाई, हम चलते हैं और वापसी पर यहीं आएंगे। और दोपहर के खाने में आपको क्या इंतज़ाम करना है, इसकी हिदायत तो आपके पास मौजूद है ही। आज की बात तो नहीं है, मेहताब अली ने अपनी बेगम से कहा। मैंने कुछ कहना चाहा तो वो जल्दी से बोले, नहीं मियाँ, ज़ाहिर है मेहमान मेज़बानों से तकल्लुफ़ की बातें करते हैं और कहते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है, लेकिन मेज़बान समझते हैं कि किस चीज़ की क्या ज़रूरत है। अब आओ, देर हो जाएगी, तांगा भी तलाश करना होगा। मैं मेहताब अली साहब के साथ बाहर निकल आया। ऐसे बहुत से करम फरमा मोहब्बत करने वाले मुझे ज़िंदगी में मिल चुके थे, और ऐसे लोगों से मैं महरूम नहीं रहा था। बहरहाल ये मेरी खुशकिस्मती थी कि इस दुनिया में सिर्फ नफ़रतें ही मेरी हमरुकाब नहीं थी, बल्कि मोहब्बतों का तवाज़ुन भी साथ साथ चलता रहा था।
अगर ऐसा ना होता तो जीना किस कदर मुश्किल होता, इसका मुझे बखूबी अंदाज। तांगा थोड़ी देर के बाद ही मिल गया और मेहताब अली साहब ने उसे पता बता दिया। तांगा आगे बढ़ा तो मेहताब अली साहब ने कहा, हम नौकरी करते हैं हाजी फयाज अहमद साहब के यहाँ। फयाज अहमद साहब बनारस में तिल्ले और जरी का काम के सबसे बड़े ताजिर हैं। यूँ समझ लो 16 कारखाने हैं उनके, जिनमें बनारसी कपड़ा और बनारसी साड़ियाँ तैयार होती हैं, हिंदुस्तान भर में तकसीम हो जाती हैं। अल्लाह ने खूब नवाजा है, ज़रो जवाहर से और जवाहर पारे बिखेर दिए हैं उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन तबीयत के ऐसे नेक और नफीस के आज भी अपने मुलाजमीन के साथ बैठकर खाना खाते हैं और कोई तकल्लुफ़ नहीं होता। लेकिन चूँकि खुद अपने बाजुओं से कमाया और ख़ानदानी विरसा मुंतकिल नहीं हुआ, इसलिए खुद तो नेक नफ्स और मिलनसार आदमी है, लेकिन अहले खाना का उनकी कमाई से खाना ख़राब हो गया है। खसूसन साहबजादी दुरे शहवार मौजूदा दौर की अक्कासी करती हैं, और चूँकि हाजी साहब की बेगम ने उनके नज़ूल के बाद हाजी साहब से साफ साफ कह दिया कि ये अव्वल से आखिर तक हैं और इससे आगे औलाद का तसव्वुर ना किया जाए, हाजी साहब ने भी कनात कर ली और दुरे शहवार बुरी तरह से बिगड़ गई। मैं अपने मालिक की बेटी की बुराई नहीं कर रहा, बच्ची बहुत अच्छी है, नेक तबीयत और अच्छे आदात व खसाइल की मालिक, लेकिन बस तबीयत में गरूर है। मिलना जुलना अपने हम पल्ला लोगों से ही है, इसलिए आम लोगों को खातिर में नहीं लाती। सारी बातें इसलिए कह दी हैं मियाँ मसूद के हो सकता है तकदीर यावरी करे और तुम्हारा वास्ता इन्हीं लोगों से पड़े। जहाँ तक रहा बेगम फयाज का मामला, तो यूँ समझ लो कि वो न तीतर है न बटेर। जब कभी ख़ानदानी कैफियत उभर आती है तो वो इंसान होती हैं, और जब ज़माने के रंगों में रंगी हो तब उनकी रंगीनियाँ कुछ और बढ़ जाती हैं। तुम्हें यह सब कुछ बताना इसलिए ज़रूरी है कि हम करेंगे आज तुम्हारी नौकरी के लिए बातचीत, और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद तो यही है कि नौकरी मिल जाएगी। देखो मियाँ, अभी इसी वक्त इस तांगे में अपनी पसंद बता दो। हम तो हाजी साहब से ये कहेंगे कि हमारा अपना बच्चा है, कोई भी जगह दे दी जाए, लेकिन अगर तुम्हारी कोई पसंद हो तो। मैंने हैरानी से मेहताब अली को देखते हुए कहा, नहीं मेहताब साहब, मुझे सिर्फ मुलाजमत चाहिए, इसमें कोई तखसीस नहीं है, कोई पसंद नहीं है, खुदा खुश रखे। वैसे भी मजहब ने रिज़्क़ हलाल के लिए मेहनत को अफजल करार दिया है। लोग तो तनासानी तलाश करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर हसूल रिज़्क़ में पसीना निकल आए तो यूँ समझ लो मोतियों से ज़्यादा कीमती होता है। बहरहाल मुसर्रत हुई। जिस हवेली के साथ तांगा रुका वो उस बात का इजहार करती थी कि बनारस के किसी रईस की हवेली है, लेकिन बनारस के ये रईस जो सादा से कुर्ते पाजामे और टोपी में मलबूस थे, किसी भी तरह इस हवेली के मालिक नजर नहीं आते थे। दूर ही से लपके लपके आए और मेहताब अली के करीब पहुंच गए थे। अम्मा मेहताब, क्यों परेशान करते रहते हो तुम मुझे? बार बार बीमार पड़ जाते हो और मैं कहता हूँ कि तुम आए क्यों? मैं खुद ही आने वाला था तुम्हारे पास, न जाने किससे दिल लगा बैठे हो। मैं कहता हूँ इस उम्र में दिल का रोग पालना ज़रूरी था क्या? मेहताब अली साहब न्याज़मंदी से मुस्कुराए और बोले, इस बच्चे को लेकर हाजिर होना ज़रूरी था हाजी साहब, वरना ना आता। अम्मा तो बच्चे को भेज दिया होता। कौन है ये? उन्होंने मेरी तरफ देखा तो मैंने उन्हें सलाम किया। हाजी साहब मुझे देखते रहे, फिर बोले, कौन है ये मेहताब मियाँ? बस यूँ समझ लीजिए अजीज़ है मेरा, नौकरी का ख्वाहिशमंद है। अच्छा, कहाँ किस कारखाने में लगना है? कोई काम जानते हैं या कोई और नौकरी देना चाहते हैं आप? अरे हाँ मियाँ, ज़रा एक बात तो बताओ, गाड़ी चलाना आती है? जी, मैंने जवाब दिया। बस ठीक है, और कोई हुक्म जनाब मेहताब अली साहब? नहीं हजूर, बस आपकी नवाजिशों के साए में परवान चढ़ रहा हूँ। मिसरा सानी भी अर्ज़ कर डालिए, हाजी साहब ने ज़राफ़त से कहा और मेहताब अली मुस्कुरा दिए। तब हाजी साहब मुड़कर किसी को आवाज़ देने लगे। एक दुबला पतला सा आदमी करीब आया। गाड़ी की चाबी कहाँ है? हाजी साहब ने पूछा। ये है सरकार। उस शख्स ने चाबी निकालकर हाजी साहब के हवाले की। पेट्रोल है गाड़ी में? टंकी भरी हुई है, वो बोला। ठीक है, जाओ। हाजी साहब बोले और फिर चाबी मुझे देते हुए बोले, तो मियाँ आप अपनी मुलाजमत का आगाज़ यूँ करें कि सबसे पहले इन मेहताब अली को इनके घर पहुँचा। एक और अर्ज़ है, मेहताब अली बोले। इरशाद। ये बनारस के गली कूचों से वाकफियत नहीं रखते, इसमें कबाहत होगी। मियाँ जिसे जहाँ जाना होगा रास्ता खुद बताएगा, आप जाइए। रास्ते में मेहताब अली हाजी साहब के बारे में बहुत कुछ बताते रहे थे। घर जाकर वो अपना लंच भी कैंसिल करना पड़ा था, जिसकी हिदायत मेहताब अली कराए थे। फिर मैं वापस हाजी साहब की कोठी पर पहुंच गया। हाजी साहब ने एक माकूल तनख्वाह की पेशकश की थी, बहुत सी मराहत से नवाजा था। सुबह 8 बजे यहाँ पहुँचने की हिदायत की थी। वापसी का कोई तायुन नहीं था, लेकिन यह सब कुछ बोर नहीं था। दिल खुशी से मुनव्वर हो गया था। 2-3 जगह के काम सौंपे गए और मैंने खुश असलूबी से सरअंजाम दिए।
सूरज छुपे छुट्टी दी गई और वापसी पर हाजी साहब ने कुछ रकम जेब में ठूंस दी। ना ये कर्ज है, ना बख्शिश, ना इनाम, ये फ़र्ज़ है जो आज मैं पूरा कर रहा हूँ। कल तुम पूरा करना और जिसे कुछ दो उसे हिदायत करना कि जब वो साहिब इस्ताअत हो तो इसे किसी और को वापस कर दे। ज़िद या रद्दो-कदा करके मेरे उसूलों को मजरूह ना करना जो मुझे किसी और ने दिया था, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मैंने खामोशी से गर्दन हिला दी। रमा रानी के सामने वो पैसे रख दिए। अरे ये क्या है? मेरी कमाई, मैंने कहा। रमा रानी के चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गए। वो कुछ देर खामोश रहीं। उन्होंने मुझे अजीब से अंदाज में देखा और खामोशी से वहाँ से चली गई। मैं उनकी कैफियत समझ नहीं पाया था। खाने के बाद अलबत्ता उन्होंने मुझे कहा, तुम्हारी हैसियत इतनी मामूली है रत्ना। समझा नहीं रमा रानी, मुझे तो तुम्हारी पेशानी जगमगाती नज़र आती है। लगता है धरती पर पाँव मारोगे तो दौलत उबल पड़ेगी। मैं मुस्कुरा दिया। आहिस्ता से कहा, मैं धरती पर पाँव मारना नहीं चाहता रमा रानी। साधुओं, ऋषियों, मुनियों और देवताओं जैसी बातें करते रहते हो। संसार ताकत की ज़ुबान समझता है और संसार में सबसे ज़्यादा ताकतवर दौलत होती है। एक बार दौलत के ढेर लगा लो, जीवन भर के लिए देवता अवतार बन जाओगे। सोचना मेरी बात पर, वो बाउली तुम्हारे लिए 16 सिंगार कर रही है। मैं उनके जाने के बाद उनकी बातों के बारे में सोचता रहा, मगर कुछ समझ नहीं आई। दौलत के अंबार मेरे पैरों तले थे, मगर हलाल की कमाई के 4 लड्डू मैं कभी नहीं भूल सकता था। सोचा फिर कभी उनसे बात करूंगा, मतलब पूछूंगा इन बातों का। अलबत्ता जिस बाउली के 16 सिंगार के बारे में उन्होंने मुझसे कहा था, वो रात गए मेरे कमरे में घुस आई। कृष्णा थी और शोला ज्वाला बनी हुई थी। सुर्ख रंग का लिबास, दमकते हुए गहने, फूलों के महकते हार, होंठों पर नशा आलूद मुस्कुराहट और आंखों में अनोखा खुमार। बोझल बोझल अरमान मेरे एहसास से लड़खड़ाई हुई। रत्ना, उसकी नगमाबार आवाज़ उभरी। तुम्हें क्या हो गया कृष्णा? दुल्हन बनी हूँ तुम्हारे लिए, माँ ने इजाज़त दे दी है। मुझे अपने चरणों में स्वीकार कर लो, हमारा प्रेम अमर हो जाएगा। आज पूर्णमासी है रत्ना, बड़ी रात है। आज की रात और बड़ी हो जाएगी। मुझे स्वीकार कर लो रत्ना। उसने मेरे पाँव पकड़ लिए। अरे अरे कृष्णा, तुम्हें क्या हो गया? मैंने जल्दी से पाँव सिकोड़ कर उसके हाथ पकड़ लिए, मगर मेरी घिग्गी बन गई। मेरी नज़रें उसके मेहंदी रचे हाथों पर जम गई। उसके दोनों हाथों में 7 उंगलियां थीं। 7 उंगलियां जो मेरी आंखों का धोखा नहीं थी, मेरी निगाहों के सामने थी और मुझे उन 7 उंगलियों से होशियार कर दिया गया था। दिमाग पर हथौड़े बरसने लगे। कृष्णा और 7 उंगलियों वाली, क्या ये पूर्णी है? भूरिया चरण की जादूगरनियाँ। मगर मैं क्या करूँ? मुझे क्या करना चाहिए? कृष्णा की निगाहें मुझ पर नहीं थी। वो जैसे नशे में डूबी हुई थी। उसकी आंखें झुकी जा रही थी और अंदाज में बेपनाह बेखुदी थी। फैसला करना मुश्किल हो गया कि क्या करूं। बाहर तो मैंने उसे संभाला, बिस्तर पर बिठा दिया और खुद उससे कई फुट दूर होकर खड़ा हो गया। ये बात अब आहिस्ता आहिस्ता मेरी समझ में आ रही थी कि कृष्णा का ये अमल किस मकसद के तहत है। मुझे आगाह कर दिया गया था और अगर सब कुछ जानने के बाद किसी और लफ्ज़िश का शिकार हो जाऊं तो फिर कुछ नहीं हो सकेगा। जो फैसला मुझे दिया गया था उस पर अमल करके ही मेरे जुर्म का खात्मा हो सकता था। लेकिन इससे मुतालिक वो सब, रमा रानी, राधा, लक्ष्मी, मालती, अगर मैं इस हिदायत पर अमल कर डालूं तो उन सब के सामने क्या कहूँगा? अंदर से दिल ने चीख कर कहा, तुझे सबकी पड़ी है अपनी सोच। जो गलाजत तेरे वजूद में उतार दी गई है उसे कम करने का मौका मिल रहा है। इससे गुरेज क्यों कर रहा है? जल्दी कर, इससे पहले शैतान से निजात हासिल कर, जल्दी कर। आवाज़ तेज़ होती गई, मेरे हवास पर छा गई। मैंने खूनी निगाहों से कृष्णा को देखा। उसके होंठों पर नशीली मुस्कुराहट फैली हुई थी। दासी हूँ तुम्हारी, जीवन वार दूंगी तुम पर, संसार में इतना ऊंचा कर दूंगी कि कोई तुम्हारे चरणों की धूल भी ना पा सके। महान हो जाओगे, महान हो जाओगे, महान हो जाओगे। मुझे स्वीकार करो रत्ना जी, मुझे स्वीकार कर लो। उसने दोनों बाजू मेरी जानिब फैला दिए। हुस्नो जमाल की एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आंख बिछाने को जी चाहे। खूबसूरती का ऐसा बेमिसाल मुरक्का के मुसव्विर उसकी सही तस्वीर ना बना पाए। मेरी निगाहों के सामने था, लेकिन अब मेरी कैफियत में नुमायाँ तब्दीली रूनुमा होने लगी थी। बदन में चिंगारियाँ दौड़ने लगीं। पूरे वजूद में सनसनाहट फैल गई थी और इस कैफियत ने मुझे सहारा दिया। आंखों में खून उतरता महसूस हो रहा था। हर शय सुर्ख सुर्ख नज़र आ रही थी और जहनी कैफियत बहुत अजीब हो रही थी। मैं एक कदम आगे बढ़ा, उसके होंठों पर इस्तकबालिया मुस्कुराहट फैल गई। उसने अपने जिस्म को थोड़ा सा पीछे सरका लिया, जैसे मुझे अपने करीब जगह देना चाहती हो। मैं उसके करीब बैठ गया।
اس کے سیاہ لمبے بال بکھرے ہوئے تھے، سر پر زیورات سجے ہوئے تھے۔ میری انگلیاں آہستہ آہستہ آگے بڑھیں۔ میں نے اس کے بال اپنی گرفت میں لیا اور اس کے چہرے سے پیچھے ہٹا دیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے شانوں پر رکھ دیے اور میرے ہاتھ اس کے بالوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے اس کی گردن کے عقب میں پہنچ گئے۔ تب اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ میں نے آہستہ سے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی گردن پر رکھ دیے اور پھر میرے ہوش و حواس پر تاریکی سی چھانے لگی۔ میں نے در حقیقت کوئی خون نہیں کیا تھا، کبھی نہیں کیا تھا۔ جتنے الزامات مجھ پر عائد کیے گئے ان میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ وہ صرف بھوریا چرن کا عمل تھا۔ لیکن اس وقت میں پہلا خون کرنے جا رہا تھا، اور اگر اس وقت کوئی کمزوری دکھائی تو کچھ بھی نہ کر سکوں گا۔ جو کرنا ہے کر ڈالنا چاہیے، دیر کرنا کسی طور مناسب نہیں ہوگا۔ وہ اسی طرح نڈھال ہو گئی جیسے اسے یقین ہو گیا کہ اب میں پوری طرح اس سے متاثر ہو گیا ہوں۔ لیکن جیسے ہی میری انگلیوں کی گرفت اس کی گردن پر سخت ہوئی، اس نے چونک کر آنکھیں پھاڑ دیں اور در حقیقت دیکھنے کے اس انداز میں پوری طرح اس سے متاثر ہو گیا ہوں۔ لیکن جیسے ہی میری انگلیوں کی گرفت اس کی گردن پر سخت ہوئی، اس نے چونک کر آنکھیں پھاڑ دیں اور در حقیقت دیکھنے کے اس انداز میں ایک دوسری ہی کیفیت تھی، جیسے اسے میری نیت کا احساس ہو گیا ہو۔ اب ان آنکھوں میں خمار نہیں تھا بلکہ خوف تھا، تیزی تھی، تندئی تھی۔ اس کے ہاتھ اوپر اٹھے، لیکن میں نے دانت کچکچا کر اس کے نرخرے کو دبوچ لیا اور بدن میں جتنی قوت تھی ایک لمحے میں ہاتھوں میں منتقل کر دی۔ میری انگلیاں جیسے موم سے گزر رہی تھیں۔ میں نے اتنی طاقت سے اس کا گلا دبایا کہ اس کی زبان باہر نکل آئی، آنکھیں ابل پڑی، اس کا بدن ایک لمحے کے لیے پھڑ پھڑایا اور اس کے بعد اس کی آنکھیں واقعی بے رونق ہو گئیں۔ زبان ہونٹوں سے کئی انچ باہر نکل آئی تھی، منہ کھلا ہوا تھا، چہرے پر دہشت منجمد ہو گئی تھی، لیکن میری انگلیاں اسی طرح اس کی گردن میں پیوست تھیں جیسے کوئی شکنجہ پوری قوت سے کس دیا جاتا ہے۔ مجھے ایک دم یہ احساس ہوا کہ اگر میں ان انگلیوں کو اس کی گردن سے ہٹانا بھی چاہوں تو میری قوت سے باہر ہے۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ اب اس کے وجود میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں تھی۔ چہرہ آہستہ آہستہ بھیانک ہوتا جا رہا تھا، البتہ جسمانی کیفیت پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ رفتہ رفتہ میری کیفیت بے اعتدال پر آنے لگی۔ اس یقین کے بعد کہ کشنا مر چکی ہے، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں پر توجہ دی، انگلیوں کو بمشکل تمام اس کی گردن سے جدا کیا اور چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میرے گردن چھوڑنے پر وہ بستر پر گر پڑی تھی۔ ایک بے جان وجود میرے سامنے تھا اور میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ در حقیقت یہ پہلا خون تھا۔ دل میں ایک لمحے کے لیے بہت سے وسوسے، بہت سے احساسات جاگ اٹھے، کہیں وہ حقیقت میں کشنا نہ ہو۔ رما رانی نے اس کی جو کیفیت بتائی تھی اس میں دیوانگی کا خصوصی طور پر تذکرہ تھا، اور پھر اتنے دن میں خود سے بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ کشنا محبت میں پاگل ہو گئی تھی اور اس کے اندر کوئی بھی کیفیت کسی بھی وقت پیدا ہو سکتی تھی۔ یہ جانا بوجھا خون میں نے پورے ہوش و حواس کے عالم میں کیا تھا، یعنی یہ کہ مجھے یہ اندازہ تھا کہ میں ایک انسانی خون کر رہا ہوں، لیکن اندرونی طور پر جو احساسات میرے ذہن میں موجود تھے ان کا تعلق صرف میری ذات سے تھا۔ کیا یہ واقعی پورنی ہے؟ اگر نہیں تو کیا یہ صرف اس بنیاد پر میں نے اس کا خون کر ڈالا کہ اس کے ہاتھ میں 7 انگلیاں تھیں؟ اس سے پہلے کبھی اس پر میں نے اتنا غور کرنے کا موقع ہی نہیں پایا تھا۔ اول تو میں نے اسے اتنی گہری نظروں سے کبھی دیکھا نہیں تھا، اس وقت بھی جب میں رما رانی کے یہاں رتنا کی حیثیت سے مقیم تھا، اور اب بھی اتنے دنوں میں ایک بار بھی میرے ذہن میں یہ تصور نہیں جاگا تھا کہ میں اسے بھرپور نگاہ سے دیکھوں۔ ہو سکتا ہے یہ انگلیاں، ہو سکتا ہے۔ دفعتاً میرے دل کو دہشت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ نگاہیں چونکہ کشنا پر جمی ہوئی تھیں اور اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس لیے اس کے پپوٹوں کی وہ جنبش میری نگاہوں سے بچی نہ رہ سکی۔ اچانک ہی اس نے پلکیں کھول دی۔ ایک لمحے کے لیے میرے بدن میں جھرجھری سی دوڑ گئی، میرا دل دہشت سے لرزنے لگا۔ کیا میں اسے ہلاک کرنے میں ناکام رہا ہوں؟ کیا میرے ہاتھوں کی قوت نے بھرپور طاقت سے میرا ہاتھ ساتھ نہیں دیا؟ میں اسے دیکھتا رہا۔ اس کی کھلی آنکھیں بڑی عجیب لگ رہی تھی، پھر اس نے زبان بھی منہ کے اندر کر لی اور ہونٹ بند کر لیے، لیکن اس کے بعد اس کے اٹھنے کا جو انداز تھا اس نے مجھے کسی حد تک مطمئن کر دیا کہ یہ سب کالا جادو ہے۔ گندے اور غلیظ اجسام۔ کشنا نے مسیری پر ہاتھ نہیں جمائے تھے، بلکہ اس کا آدھا دھڑ مشینی انداز میں اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، پھر مسیری پر بھی کھڑی ہو گئی تھی وہ، اور اس کے دونوں ہاتھ سیدھے تھے، گردن بالکل تنی ہوئی تھی، آنکھیں سامنے جمی ہوئی تھی اور میں اس کی آنکھوں کی زد سے الگ تھا۔ پھر وہ اسی انداز میں دروازے کی جانب مڑی۔ میں نے ایک اور منظر دیکھا، وہ قدم نہیں اٹھا رہی تھی، بلکہ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی چیز اسے دھکیلتی ہوئی لے جا رہی ہو۔ اس کا رخ دروازے کی جانب تھا،
دروازہ بند تھا، لیکن جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچی دروازہ کھل گیا۔